السلام علیکم، میں ہوں عفت حسن رضوی اور میرے ساتھ پاکستان سے صحافی وحید مراد موجود ہیں۔ پاکستان کی سوشل میڈیا پہ بہت سارے معاملات ڈسکس ہو رہے ہیں۔ وحید، آج کل کیا چل رہا ہے؟ چل تو بہت کچھ رہا ہے۔ رمضان کے آخری عشرے میں کافی چیزیں سامنے آئیں اور پھر عید بھی گزر گئی، اب مزید چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ جنگ تو مشرق وسطیٰ میں جاری ہے، لیکن اس کے جو کچھ آفٹر شاکس ہیں یا اس دوران شاکس ہیں، آفٹر شاکس اس لیے نہیں کہہ سکتے ہم کہ ابھی جاری ہے، تو وہ بھی ہم یہاں پر سہ رہے ہیں، پاکستانی کمیونٹی دنیا بھر میں سہ رہی ہے۔ ایک تو ہمارا مستقل ایک مسئلہ رہتا ہے نا پی ٹی آئی کے ساتھ، لیکن آج کل وہ تھوڑے سے سائڈ پہ ہیں، ان کی خبریں اس طرح نہیں ہیں، دیگر خبریں جو ہیں بہت زیادہ لائم لائٹ پہ ہیں۔ لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جن پہ بات نہیں کی جا رہی، پاکستان کا مین اسٹریم میڈیا بات نہیں کر رہا۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ علی وزیر جو سابق رکن قومی اسمبلی رہے، اور وہ پشتون تحفظ موومنٹ جس کو اب پشاور ہائی کورٹ نے قلعدم قرار دیا ہے، اس کے رہنما بھی ہیں۔ وہ سندھ میں 1.5 سال سے قید تھے، اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں کہ ان کو دوبارہ یعنی رہائی ضمانت کے بعد دوبارہ گرفتار کیا گیا اور ایک عجیب قسم کا مقدمہ بنایا گیا۔ اس کی ایف آئی آر پڑھ کے ہی بندے کو ہنسی آتی ہے، اس پہ بھی ہم بات کر سکتے ہیں۔ پھر کراچی کے ایک مفتی عبدالرحیم ہے، جامعۃ الرشید کے بڑے مشہور دیوبندی مکتب فکر کا مدرسہ ہے، ماڈرن طرز کا مدرسہ ہے، جس میں بڑے عرصے میں جاوید چودھری اس میں جا کے لیکچر بھی دیتے رہے۔ باقی کچھ ہمارے جو ماڈریٹ لوگ ہیں ان کو وہاں لے جایا گیا، کافی بار ہم نے وہاں مطالعاتی دورے کیے، پھر مین اسٹریم میڈیا کو بتایا۔ اس پہ بھی بات کی جاتی ہے کہ مفتی عبدالرحیم جو ان کا مدرسہ اور وہ جو خود یا ان کے جو مسلک کے لوگ تھے یا ان کے جو بڑے تھے، وہ تصویر تک کو حرام قرار دے رہے تھے، لیکن اب انہوں نے خود آ کے ٹی وی پہ انٹرویو دیا، اور وہ ٹی وی انٹرویو بھی ایک خاتون اینکر کو دیا ہے، کرن ناز کو۔ اس پہ بھی ہم بات کر سکتے ہیں۔ آپ بتائیے آپ کے پاس کیا ہے، کیا بات کرنے جا رہی ہیں یار، آپ؟ مولویوں کی بات ہو رہی ہے تو پھر میں نے کہا کہ شیعہ مولویوں کی کا بھی ذکر کر ہی لیتے ہیں، جن کو پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب نے اپنے پاس بلایا تھا۔ آخری عشرہ چل رہا تھا اور شاید تھکے ہوئے تھے مولوی۔ پاکستانی ماحول بھی کچھ ایسا گرما گرم چل رہا ہے۔ جنگ تو ظاہر ہے ہمارے پڑوس میں چھڑی ہے، لیکن اس وقت سب کے جذبات میرا خیال ہے اپنے پیک پر ہیں، اور جہاں پہ مسلک کی فرقے کی بات آ جاتی ہے تو لوگوں کے ظاہر سی بات ہے پھر آرگیومنٹس جو ہیں اس میں بھی آبجیکٹیوٹی کم سے کم ہوتی چلی جاتی ہے، تو اس پہ بھی بات کر سکتے ہیں ہم۔ ہاں جی، پھر آپ شروع کیجئے انہی سے، کیونکہ وہ اب میں کروں گا تو میں سنی گھرانے میں پیدا ہوا تھا تو ہم اس پہ آبجیکٹو بھی گفتگو کریں گے۔ ظاہری بات ہے پاکستان میں کوئی بھی چیز جو ہے وہ اپنے مدار کے اندر تو رہی نہیں ہے، تو ہم اس ہوں چیز پہ اس کا احاطہ کریں گے کہ مدار سے باہر جب آپ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، یعنی خواہ وہ مولوی ہوں، خواہ پاکستان کے سیاستدان ہوں، خواہ سوسائٹی کے دیگر طبقات ہوں، خواہ پاکستان کی فوج یا اسٹیبلشمنٹ ہو، جب آپ اپنی مدار سے باہر نکلتے ہیں تو پھر اس کا کچھ کانسیکوینسز بھی ہوتے ہیں، نتائج بھی بھگتنے پڑتے ہیں۔ تو اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں۔ آپ شروع کیجیے، اس میں بسم اللہ کیجیے۔ پاکستان کے آرمی چیف عاصم منیر صاحب نے اپنے پاس رمضان کے آخری عشرے میں شیعہ علماء کو بلایا تھا، اور اس کا کانٹیکسٹ آیت اللہ خامنہ کی ڈیتھ کے فوراً بعد ہونے والے وہ تمام پرتشدد مظاہرے ہیں جس میں 30 سے زیادہ مظاہرین کی جان گئی تھی، اور ان مظاہروں میں سرکاری املاک جس میں فوجی تنصیبات بھی شامل ہیں، ان کے دفاتر ہیں شامل، ان کو بھی نقصان پہنچایا گیا تھا۔ تو اب یہ معاملات کچھ ایسے ہیں اور اتنے حساس ہیں کہ اس پر شاید ضروری سمجھا ہو ہماری افواج نے کہ بند کمرے میں بات کی جائے اور ڈیلیور کیا جائے اپنا پیغام کہ اس طرح کے مظاہرے جو ہیں وہ کاؤنٹر افیکٹو ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو شیعہ علماء ہیں انہوں نے اگلے ہی دن جمعے کا روز تھا اور جمعرات کو میٹنگ ہوئی تھی، اور جمعے کے خطبے میں انہوں نے پھر اس کو ریویل کیا کہ ان کے جذبات تھے کہ وہ بات کرتے، ان کو بات کرنے نہیں دی گئی، اور انہوں نے الزام لگایا شیعہ علماء نے کہ جو میٹنگ میں موجود تھے کہ ان سے سخت لہجے میں بات کی گئی، اور ان کو کہا گیا کہ اگر آپ اتنے زیادہ جذباتی ہیں ایران کے معاملے میں تو وہیں چلے جائیں۔ یہ ایک ہائی لائٹ، یہ جو ایک جملہ ہے، حالانکہ obviously بی بی سی نے بھی رپورٹ کیا ہے کہ اس پورے معاملے میں اس پوری بات چیت میں اور بھی بہت باتیں ہوئی ہیں، لیکن اس جملے کو ہائی لائٹ سب سے زیادہ کیا گیا ہے، اور پھر آپ کو پتا ہے پاکستان کا کتنا پولرائزڈ سیاسی ماحول ہے، تو پھر اس میں پی ٹی آئی
वालों ने फिर उसको उठाया है इस मामले को सोशल मीडिया पे। मेरी ज़ाती राय है कि अगर आप अपने सबऑर्डिनेट से या अपने ही प्रोफ़ेशन के किसी दूसरे शख़्स से बात करते हैं, तो आप उनसे तो राज़दारी की तवक्को रख सकते हैं या यस सर कहने की तवक्को रख सकते हैं। लेकिन जब आप जमहूर से बात करते हैं, लोगों से बात करते हैं, लोगों के नुमाइंदों से, तो उसमें तो लो आप उनके रिएक्शन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। और दूसरा जो मुझे नहीं समझ में आई कि ये अगर किसी जमहूरी प्लेटफ़ॉर्म पे अगर कोई सिविलियन कोई हुकूमती नुमाइंदा इन उलमा से मिलता, ज़रदारी साहब मिल सकते थे, शहबाज़ शरीफ साहब मिल सकते थे, इसहाक़ डार के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, वो मिल सकते थे। ठीक है कि और भी मामलात में बिज़ी हैं, लेकिन जब उस लेवल पे मिला गया तो फिर उतनी ही तवक्कुआत भी थी। आपका जी। क्या ख़्याल है इस मामले में हाँ, मैं वहीद? भी इफ़त आपने दुरुस्त निशानदेही की। मैं ये समझता हूँ आपने एक तो बात की कि हसास तो हमारी हमारी मुसीबत सब तो ये है कि हमारे लिए हर चीज़ तकरीबन हम सिक्योरिटी स्टेट बने हुए हैं तो हसास होती है। मेरे ख़्याल में हसास सिर्फ़ एक चीज़ होती है वो है इंसानी जान, उसकी कीमत जो है उसकी कोई कीमत नहीं है। तो ज आपने बताया 26 से 30 लोगों की इत्तलात आई थी कि उनकी मौत हुई है, अमवात ये हुई है। उनमें से सबसे ज़्यादा अमवात कराची में जो अमरीकी कौंसलेट है उस पर मुज़ाहिरीन के वहाँ घुसने के नतीजे में हुई थी और वो तस्लीम भी किए गए थे। अमरीकी मेरीन्स जो वहाँ मौजूद थे उन्होंने वो उसकी कोई एफआईआर कोई मेरे ख़्याल नहीं है कोई उसमें पेशरफ्त होगी, कभी नहीं होगी। लेकिन अब वो एक जान भी हसास थी और उसके बाद जो इस्लामाबाद में तकरीबन 2 जानें गईं। मुज़ाहिरीन की गईं। फिर उसके बाद स्कर्दू में बड़े पैमाने पे लेकिन ये जो रिएक्शन आया पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से या पाकिस्तान की फ़ौज की जानिब से जिसकी वज़ह से शायद ये उलमा को बुलाया गया, एक ही मसलक के और क्योंकि वो वहाँ पर उनकी तरफ से ये मुज़ाहिरा हुआ था स्कर्दू वाले पे। वहाँ पर जो फ़ौजी तनसीबात की बात आई कि वहाँ पर फ़ौजी तनसीबात खान कम्युनिटी की जो सर्विसेज़ हैं उनको नुकसान पहुँचाया गया। अक़वाम मुत्तहिदा का एक मिशन या दफ़्तर का एक वो दफ़्तर था उसको जलाया गया, वहाँ नुकसान पहुँचाया गया, स्कूल बाकी सरकारी तनसीबात को। लेकिन जो चीज़ पहले हाइलाइट हुई कुछ मखसूस एंकर्स की जानिब से भी वो पैगामात के सूरत में, वीडियोज़ की सूरत में आई कि वहाँ 2 फ़ौजी जवान जो है उनको उनकी अमवात हुई इन मुज़ाहिरों के दौरान फ़ौजी तनसीबात को नुकसान पहुँचाया गया, उसके बाद शायद ये पैगाम लेकिन बात वही है कि हर चीज़ जो है वो पहले सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है इंसानी जान जिसकी इसमें सबसे बुनियादी जो मैं समझता हूँ वो ये है कि जो लोग मुज़ाहिरीन को बाहर लाते हैं मैं हूँ, आप हैं, कोई आलिम दीन है, कोई मस्जिद का मौलवी है, कोई सियासतदान है कोई भी है, कोई समाजी शख्सियत है। जब आप एक जज़्बात का इज़हार करने के लिए आते हैं, तो मैंने अमूमन देखा है कि अहले तशय्युह जो बाकी भी मुज़ाहिरे करते हैं यौमुल कुद्स का होता है यौम अली का होता है, मुहर्रम की वो होती हैं जो निकाले जाते हैं उस दौरान। तो उस दौरान जुलूस। उन जुलूसों में भी उनके अपने रज़ाकार चारों तरफ से वो एक ख़ास घेराव में क्योंकि अ, हसासियत उस नौइयत की भी है ना कि उन पे हमलों का खतरा माज़ी में हमने देखा है पिछले 20-25 साल में जो हुआ है इस मुल्क में। तो उनको इस बार ये किया गया कि टोटल खुले छोड़ दिए गए और उसका अपना नुकसान भी हुआ। कराची में भी जानी नुकसान हुआ। इसमें मगर सबसे पहले इसको नेचुरली क्यों नहीं ले लेते आपके मतलब रिएक्शन जो है ना वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता। नहीं जो होता बिल्कुल। स्काउट्स होते हैं वो तो कई दिन पहले तैयारी करते हैं जी, बिल्कुल मुहर्रम के तैयारी जुलूस करते की। हैं। मैं ये समझ रहा हूँ कि सबसे पहले देखें अगर आप होता क्या है कि जब भी इस तरह कोई वाक़या होता है यानी जिस तरह जो सुप्रीम लीडर हैं या रहबर जो हैं उनकी मौत हुई अमरीकी हमले में या इसराइली हमले में, उसके बाद एक नेचुरल था, आउटबर्स्ट होना, एक मुज़ाहिरा होना, इस्लामाबाद में भी हुआ, कराची में भी हुआ, लेकिन उसको जो लोग लीड कर रहे थे या किसी इमाम बारगाह से निकलते हैं वो लोग ना या इमाम बारगाह के बाहर इकट्ठे होते हैं या अपने घरों से निकलते हैं, आप उनके लिए ऐलानात तो कर सकते हैं ना, कि भई कोई शख्स कानून को हाथ में नहीं लेगा और अगर वो लेगा तो हम उसकी ज़िम्मेदारी नहीं उठाएँगे। फिर उनके साथ जो संभलेंगे जिस तरह आप मुलाकात में आर्मी चीफ ने से उनसे मनसूख किया कि उन्होंने कहा कि हम मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल करेंगे। तो अब भी आप उसके रेज़िस्ट करेंगे ना कि मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं होना चाहिए क्योंकि आम शहरी हैं। तो ये उससे पहले इसके कॉन्सिक्वेंसेज़ बता देने चाहिए लोगों को। ख़ास तौर पर वो जो लोग जो लीड करते हैं हुँ। मसाले के बड़े हैं, उनको ऐलानात करने चाहिए लाउड स्पीकर्स पे क्योंकि स्कर्दू जैसे शहर में आपके लिए मुमकिन है, कोई इतना नामुमकिन नहीं होता कि आप ऐलानात करें कि भई आप ठीक है गम-ओ-गुस्सा है, लेकिन इसको आप अपनी इमलाक में ना निकालें। पहली बात तो मैं ये समझता हूँ। दूसरी बात जो आपने निशानदेही की वो थी कि जब मुल्क में सदर मौजूद है अ, सदर आपको पता है सुप्रीम कमांडर फ़ौज का, वज़ीर-ए-आज़म मौजूद है, चीफ़ एक्ज़ेक्टिव मुल्क का, हुकूमत का, ठीक है?
उस और उसके बाद ख़ारिजा मौजूद है, वज़ीर दाख़िला मौजूद है और वज़ीर दाख़िला उसी मसलक के हैं, वो भी उनको कंट्रोल कर सकते हैं। बातचीत के लिए आप बुला लें ना, उन खुतबा को, उलमा को बुला रहे हैं जो मिंबर रसूल पे बैठते हैं, जो जुम्मे को खुतबात देते हैं। उनसे आपने नेगोशिएट करना है, उनके ज़रिए वो पैगाम आप पहुँचा रहे हैं। तो उस पैगाम को पहुँचाने के लिए मेरे ख़्याल से ज़्यादा बेहतर तरीका यही हो सकता था, वज़ीर इत्तलात के ज़रिए आप कर सकते थे। अगर आप ये समझते हैं कि वज़ीर इत्तलात की, तो फिर आप जिस तरह होता है कि वो डीजीआई, एसपीआर, वज़ीर इत्तलात और बाज़ वक़्त वज़ीर दिफ़ा तीनों बैठ के जो आजकल सहाफ़ियों से खिताब करते हैं, तो इस तरह इनके साथ भी वो एक इंटरेक्शन रखी जा सकती थी। और दूसरी आईएसपीआर बात ये कि यार मौलवी को मिंबर मिल जाए या कुर्सी मिल जाए, माइक मिल जाए, उसके बाद मौलवी को तो कोई चुप नहीं करा सकता। आपने उन्हें बुलाया, दर्जन से ज़्यादा मौलवियों को आपने बुलाया और अपनी बात कही और उनकी नहीं सुनी। नहीं सुनी। और आप चले गए। तो ये तो अपने आप एक उनके लिए समझें कि बहुत बड़ी तज़हीक थी कि अब हर कोई अपने आप को यही समझता है ना कि भई मेरे पास इल्म है, कम से कम 2-4 जुमलों के साथ मैं अपना पार्ट तो अदा करूँगा। तो हुँ। यकीनन वो तमाम लोग जो आए थे उस मीटिंग में, मेरा ख़्याल है कुछ ना कुछ सोच के आए थे। पर मतलब ये कि थोड़ी-सी मिसमैनेजमेंट भी हुई और अव्वल तो होनी ही नहीं चाहिए थी। मेरे हिसाब से तो इस मीटिंग को कहीं और होना चाहिए था। लेकिन अब बात इससे आगे नहीं निकल गई है वहीद, अब हाँ, बात इससे तो अब आगे मैं यही पाकिस्तान। बताने दे रहा था कि अब तो पाकिस्तान की जो गुज़िश्ता रात से खबरें आ रही है कि पाकिस्तान मीडिएशन कर रहा है, यानी सालसी, पाकिस्तान सालसी का मरकज़ बनने जा रहा है, तो जब सालसी की तरफ आप आएँगे तो ये चीज़ें सारी सानवी हैसियत अख्तियार कर गई है कि अब अगर इस्लामाबाद में अमरीकी नुमाइंदे आते हैं, ईरान के नुमाइंदे आते हैं, आपस में बैठते हैं, बातचीत करते हैं, यानी एक अभी तक तो इनफॉर्मल एक ये हुआ है कि पाकिस्तान में शायद पाकिस्तान के ज़रिए पैगामात वहाँ पहुँच रहे हैं और वहाँ से अमरीकी क्वार्टर्स के ज़रिए क्वार्टर्स हुँ, तक पहुँच रहे हैं, दरमियान में तुर्किया भी है, सऊदी अरब भी है, मिस्र भी है। लेकिन चूँकि वो तमाम ममालिक ऐसे हैं कि उनकी पोज़ीशन थोड़ी-सी मुख्तलिफ है, यानी तुर्की जो है, वो नेटो का रुकन है और सऊदी अरब के साथ ऑलरेडी यानी एक किस्म की जंग छिड़ी हुई है। उसपे हमले हुए हैं ईरान की जानिब से रिटेलिएशन में, जवाबी कार्रवाई में। तो मिस्र दूर है। तो पाकिस्तान शायद वो पॉइंट बनने जा रहा है, वो मरकज़ बनने जा रहा है जहाँ शायद इस मशरिक़ी वस्ता की जंग के इख्तिताम जो हम उम्मीद करते हैं कि इसका हो तो यहाँ से हो। तो अब मामलात आगे चले गए, मेरे ख़्याल से वो मामलात अब पीछे रह गए, थोड़ा-सा शिया उलमा को या कम्युनिटी को भी ये समझ आ गई होगी कि ईरान के लिए हमदर्दियाँ हैं उनकी और हमारे भी एक पड़ोसी मुल्क के तौर पर हैं, कोई नहीं चाहेगा कि हमारा पड़ोसी डिस्टेबलाइज़ हो। हमारा एक पड़ोसी, हमें ऑलरेडी 2 पड़ोसी से मसाइल हैं, वो अफ़गानिस्तान से भी, इंडिया से भी, तो हम एक और सरहद पे ये नहीं चाहेंगे, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट भी नहीं चाहेगी, हुकूमत भी नहीं चाहेगी। तो 3 हफ्ते से पाकिस्तान का माहौल कुछ ऐसा बना हुआ था कि लग ही नहीं रहा था कि कौन शिया है और कौन सुन्नी है। तमाम हुँ। लोग एक इत्तेहाद के साथ सपोर्ट कर रहे थे ईरान को भी और जो खलीजी ममालिक हैं उन पे होने वाले हमलों को हम सब में तशवीश थी और ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ खलीजी ममालिक में सुन्नी रहते हैं। बहरीन की आबादी मेजॉरिटी शिया है। इसी बिल्कुल, इसी तरह से सऊदी अरब में भी शिया आबाद हैं। तो अब ये तो नहीं कह सकते हैं कि एक शिया जो है वो उसका कत्ल होगा या उस पे हमला होगा तो सिर्फ़ शिया को ही तकलीफ़ होगी। ये तो एक उम्मत मुस्लिमा का मसला बन गया था ना, ये जो पूरी सिचुएशन है। तो इसमें तो इतना अच्छा माहौल था और उस अच्छे माहौल का इख्तिताम कुछ इस तरह से हो कि जी आपस में गिरोहबंदी हो गई और अब तो पिछले 2 दिन से जब से ये शिया मौलवियों का रिएक्शन आया उसके बाद जो कुछ मशहूर ज़माना तफ़रक़ाबाज़ मौलवी हैं, जवाब दूसरी तरफ से भी आ रहा है और बड़ा अजीब-सा एक माहौल सोशल मीडिया पे है कि वो लोग जिनको हम अमूमी तौर पे ना नहीं देखना चाहते सोशल मीडिया पे भी और जो कि एक मख़सूस हल्का ही उन्हें फ़ॉलो करता है, उन तफ़रक़ाबाज़ों को भी एक गैप मिल गया कि ओके, तो आज हम अपनी सियासत चमका सकते हैं। हाँ, ये सोशल मीडिया की एक और बड़ी मुसीबत ये है कि जो भी तफ़रक़े की चीज़ें होंगी, जो कंट्रोवर्शियल होंगी, उसको वो हाइलाइट करेगा, उसको ज़्यादा फैलाएगा, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएगा। जो आप एक नॉर्मल गुफ्तगू करते हैं, एक मुनासिब अंदाज़ इख्तियार करते हैं, तो वो मेनस्ट्रीम मीडिया, पहले हमें ये शिकायत थी कि मेनस्ट्रीम मीडिया उसको जगह नहीं देता। अब तो मेनस्ट्रीम मीडिया के बजाय सोशल मीडिया का जो सिस्टम है, जो उसके एल्गोरिदम्स हैं, वो इस तरह बनाए गए हैं कि मुतनाज़ा चीज़ों को, कंट्रोवर्शियल चीज़ों को हाइलाइट करता है, उठाता है, तो जो आपने निशानदेही की, तो इस तरह की चीज़ें अब सामने आई हैं। लेकिन अब देखें, मैंने शुरू में कहा कि हम एक और मौज़ू पे जो जिसकी बात नहीं हुई, मेनस्ट्रीम ने भी नहीं की, सोशल मीडिया पे थोड़ी बहुत हुई। अब वो जो हमारे अंदरूनी इश्यूज़ कुछ और इश्यूज़ हैं, इंसानी हकूक के, शहरी आज़ादियों के, हुँ। इख्तिलाफ़ राय के इज़हार के और उसपे पाबंदियों के। तो उसकी एक मिसाल मैंने आपको दी कि अली वज़ीर, शायद आपने फ़ॉलो किया नहीं किया, 1.5 साल से वो सिंध की एक जेल में कैद है। किसी को नहीं मालूम, मेनस्ट्रीम पे ना उनकी खबर चलती है, ना कोई बात करता है, ना कोई गुफ्तगू होती है।
कि भई किस जुर्म में कैद है? जी, ये कहा था, वो कहा था, ये बात हुई थी। अब एक और उनकी चीज़ सामने आई है कि वो 1.5 साल बाद बड़ी मुश्किल से उनकी रमज़ान में उनकी एक उस केस में ज़मानत हुई जिसमें वो सखर जेल में कैद थे। तो वहाँ उनकी ज़मानत हुई और ज़मानत के बाद उनकी रोज़गार जारी होने में यानी जेल से निकलने में उनको 5 दिन लग गए। अब 5 दिन उनको ये कहा कि वो रोज़गार आएगी, ये सिंध हाई कोर्ट से हुई थी। हुँ। वो फिर जेल इंतज़ामिया तक पहुँचाई, उसके बाद उनको वो रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद वो वहीं पे सखर में ही अपने एक जानने वाले या दोस्त है या उनके गपशप वाले दोस्तों के साथ वो उनके घर चले गए इफ्तार के वक़्त। वहाँ बैठे हुए थे और उसके बाद उनके वकील ने और उन्होंने भी जो उनके वो दोस्त थे, उन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया कि उनको यहाँ से लॉ एनफोर्समेंट या पुलिस के एहलकार आके ले गए उनको और ये नहीं बताया कहाँ ले गए। 2 दिन तक तो वो मतलब रिहाई और दोबारा गिरफ्तारी में कितना गैप है? बैक टू बैक 4-5 ही हुआ घंटे है? 4-5 घंटे का, ओह! 6 घंटे का। तो वो दोबारा उनको ले गए जी उन्होंने और 2 दिन तक उनका कोई पता नहीं था कहाँ उनको रखा गया है, कहाँ है, क्या केस है, कुछ भी किसी को समझ नहीं आ रही। पाकिस्तान में कोई इस तरह की उनकी जो है ना वो उसको वो भी नहीं किया गया, परसू भी नहीं किया क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया पे जब तक नहीं चलेगी खबर, तो कोई किसी हुकूमती रुकन से, कोई हुकूमती एहलकार से, औहदेदार से कोई पूछ भी नहीं सकता। फिर हुँ। उसके बाद उनकी वो एफआईआर भी सामने आई और वो भी सोशल मीडिया के ज़रिए आई। वो मैं आपको बता दूँ कि कितनी मज़ाक़-ख़ेज़ है। वो अगली जो उनपे एफआईआर दर्ज की गई है, 2 दिन बाद जो उनकी गिरफ़्तारी ज़ाहिर की गई है एक और केस में, उसमें ये लिखा गया है कि जी ये नौशेरो फ़ेरोज़ है जो वहाँ में सिंध में ही इंसदाद शर्फ़ी की अदालत में जब उनको पेश किया गया 2 दिन बाद, उसमें एटीसी में उनके वकील ने बताया बाद में कि उनको पेश किया गया और मज़ीद उनका जुडिशल रिमांड दी गई नहीं, दोबारा जेल भेज दिया गया और इस बार उनको दादू डिस्ट्रिक्ट जो है, उसकी जेल मुंतकिल कर दिया गया है। लेकिन उससे पहले जो अदालत में उनकी एफआईआर बताई गई, जो ज़िला दादू में उनके खिलाफ सिंध पुलिस ने दर्ज की। सिंध पुलिस के वो मुद्दई है एएसआई नज़र अली लवारी और ये थाना है सेक्शन दादू और उन्होंने बयान किया है कि 16 मार्च को, यानी जिस दिन उनकी रिहाई हुई थी, वो हुँ। मामूली चेकिंग के दौरान उनको एक मुखबिर से इत्तला मिली कि कुछ अफराद पीटीएम के झंडे और असला लेकर जा रहे हैं। उन अफराद ने सड़क ब्लॉक कर रखी थी और पाकिस्तान और पाक फ़ौज के खिलाफ नारे लगा रहे थे। वो ये भी कह रहे थे कि उनके लीडर अली वज़ीर ने उन्हें हिदायत दी है कि मुल्क भर में सड़कें ब्लॉक करें। अब मुल्क भर में ये दिलचस्प बात है उनकी मुल्क भर में कहाँ है वो कि वो सड़कें और ऐसा खौफ और हरास फैलाएँ कि उनकी रिहाई के बाद हुकूमत उन्हें दोबारा गिरफ्तार ना कर सके। मुद्दई के मुताबिक इन अफराद ने अवाम में खौफ व हरास फैलाया और बदअमनी पैदा की। जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो मुल्ज़िमान ने पुलिस और अवाम पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद वो मौका से फरार हो गए और यानी इस केस में उनको पकड़ा गया है। इस तरह की दर्जनों एफआईआर्स आती हैं यानी इस तरह की एफआईआर इस्लामाबाद में लोगों के खिलाफ दर्ज हुई हैं। ईमान मज़ारी और हुँ। हादी के खिलाफ भी इस तरह की एक एफआईआर दर्ज हुई है कि उनने इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर ही सब कुछ किया, जो इसी एफआईआर में लिखा हुआ। तो ये पैटर्न है एक खास किस्म का। लेकिन ये वो चीज़ है कि जिससे सोसाइटी के अंदर आप मज़ीद लोगों को तक़सीम करते हैं। ये एक बड़ा सेगमेंट है पश्तून नस्ल के लोग तो उसको आप इस तरह की एफआईआर दर्ज करके आप क्या पैगाम देते हैं? चूँकि अब इतना इतना कुछ हो रहा है गज़ा में भी, लबनान में भी, ईरान में भी कि ये खबरें तो कहीं बीच में दब जाती हैं। हाँ, ये कुछ खबरें ऐसी हैं कि जो सोशल मीडिया पे ही आती हैं सिर्फ़, मेन स्ट्रीम मीडिया उनको चलाने की हिम्मत भी नहीं करता या इजाज़त ही नहीं है। लेकिन कुछ खबरें दिलचस्प खबर एक और भी है वो है मुफ्ती अब्दुल रहीम की जो अ, मेन स्ट्रीम मीडिया से निकली लेकिन वो सोशल मीडिया पे डिस्कस हो रही है। दोबारा मेन स्ट्रीम मीडिया पे वो नहीं आई। तो शायद आपकी नज़र से गुज़री होगी। उनने हाँ, किरण नाहर उसका को तो समा इतना की दिलचस्प तबसरा भी है कि किरण नाज़ को भी नहीं पता था कि वो किसका इंटरव्यू कर रही है और इस इंटरव्यू ने आगे क्या-क्या असरात देने हैं अब। अच्छा, तो वो शायद ना ना पता हो, वो ना जानती हों कि मुफ्ती अब्दुल रहीम कौन-सी शख्सियत हैं। लेकिन मुफ्ती अब्दुल रहीम एक्टिवेट हुए हैं या एक्टिवेट कराए गए हैं पिछले साल मई में पाकिस्तान-इंडिया जंग के बाद से। तो वो अब काफ़ी लाइमलाइट में हैं, वो पॉडकास्ट भी करते हैं, उसमें भी पे सामने आते हैं, बातें भी करते हैं। मेरे लिए दिलचस्प चीज़ ये है कि मैंने इनके अखबार में काम किया हुआ है, रोज़नामा इस्लाम में। अच्छा। इन्होंने पहले ज़रब मोमिन उन्होंने एक हफ्तरोज़ा शुरू किया था जो देवबंदी मसलक का था और जो तालिबान की अफ़गान तालिबान उस वक़्त जो थे उनकी हिमायत में चीज़ें छापता था। उसके बाद रोज़नामा इस्लाम ने शुरू किया तो मैंने कुछ ऐसा इनके साथ काम किया इनके अखबार में इस्लामाबाद स्टेशन से। तो उस वक़्त इनकी सूरत-ए-हाल ये थी कि आपको पता है आज शायद आज भी नहीं छपती होंगी मैं नहीं गौर किया। तस्वीर नहीं शायद होती अखबार में, किसी भी ज़िंदा चीज़ की तस्वीर, ज़ीरू की तस्वीर नहीं शायद होती, कि तस्वीर हराम है। और चूँकि जिस मुफ्ती रशीद अहमद का उन पे लुधियानवी का नाम लिखा होता था कि उनका अखबार है, उनकी बयात या उनकी उसमें ये शाया हो रहा है उनकी याद में, तो उस वजह से तस्वीर हराम है। इनके मसलक या इनके उसके फतावा के मुताबिक
जामियातुर रशीद के उसके मुताबिक। लेकिन वो या लोग जो उसको तस्वीर नहीं छापते थे, आज वो टीवी पे बैठे रहे हैं और टीवी पे खातून एंकर के सामने बैठ के गुफ्तगू कर रहे हैं। ये इसको कहते हैं ना इनकलाबात हैं ज़माने के, लेकिन ये ज़माने के इनकलाबात नहीं, ये उनके इनकलाबात हैं जिनके साथ जो है ना अलाइन्ड होते हैं जब वो जो ये इनकलाब लाते हैं। तुमने अभी एक जुमला इस्तेमाल किया है कि इनको दोबारा एक्टिवेट कराया गया है, ये भी हो सकता है, मुमकिन है। मुफ्ती साहब को दोबारा क्यों एक्टिवेट कराया गया है, ये भी ज़रा बताओ? देखिए हमारा हमारा अलमिया एक ये भी है कि हम हुब्बुल वतनी भी ज़बरदस्ती डालने की कोशिश करते हैं, मस्नूई ज़रिए से। अब जो शख़्स जिस मुल्क में रहता है उसकी हुब्बुल वतनी आप नहीं नाप सकते या उसके लिए कोई पैमाना नहीं है। तो अब मेरे ख़्याल से क्योंकि उस जंग के दौरान ये ज़रूरत महसूस की गई कि हुब्बुल वतनी बहुत ज़्यादा अहम है और हुब्बुल वतनी से ज़्यादा हुब्ब असाकर यानी अस्करी कुव्वतों की हुब्बुल वतनी क्योंकि जंग उन्होंने लड़नी थी। तो ये मेरे ख़्याल से उस वक़्त उसके बाद ये अब मैं नहीं इन चलाऊँगी, ये मैं एडिट कर दूँगी। चलो आगे चलो। अच्छा, तो अच्छा दूसरा हुब्बुल वतनी का फिर अगला पैमाना ये आया है, अगले उसका मरहला ये आया कि चूँकि वहाँ पर इंडिया वाला मसला तो उस वक़्त तक जंग मई की खत्म होगी, उस वक़्त तक हल हो गया या शायद चलेगा। लेकिन उसके बाद जब अफ़गानिस्तान के साथ मसाइल पैदा हुए तो फिर हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ी कि जो उस वक़्त तक तालिबान के हामी तस्वुर होते थे। तो हमने उन्हीं से ये कहलवाना था कि वो तालिबान क्या ये तालिबान वो नहीं है। तो अब शायद इनको इसलिए लाया गया और ये जो इंटरव्यू जो उन्होंने दिया है समा टीवी को, उसमें उन्होंने बुनियादी जो आपने गौर से देखा वो जो क्लिप वायरल है, मैंने तो वही देखा है, उसी हद तक देखा है, कि जिसमें वो एक इंकिशाफ कर रहे हैं। बुनियादी तौर पर वो इंकिशाफ के साथ-साथ वो एक इल्ज़ाम है, जो वो लगा रहे हुँ, हैं मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उनको $5 लाख दिए गए ताकि वो अमारत से दस्तबरदार हों यानी मुल्ला उमर की वफ़ात के बाद, उनकी मौत के बाद मुल्ला अख्तर मंसूर को जब बनाया जा रहा था, तो उस वक़्त ये उम्मीदवार थे और उनको हुँ, दस्तबरदार कराने के लिए उनको 5 लाख रिश्वत दी डॉलर गई। दिए गए। ये उन्होंने हुँ, कहा है, लेकिन इस पे बहुत से सवाल लोगों ने उठाए हैं कि ये इसमें किस हद तक सदाकत है, अब वहाँ से भी आएगी क्योंकि इस वक़्त मुल्ला याकूब को ये समझा जाता है कि वो मुल्ला याकूब पाकिस्तान मुखालिफ हैं या इस वक़्त जो अनासर हैं, जो पाकिस्तान मुखालफत कर रहे हैं उनके हामी हैं वो मुल्ला याकूब, इसलिए शायद उनको इस इंटरव्यू के ज़रिए हदफ बनाया गया, जो मेरी समझ-बूझ है, जो मैं समझ सकता हूँ। क्योंकि इतने अरसे में ऐसी कोई बात नहीं की मुफ्ती अब्दुल रहीम ने और ये अचानक इतना बड़ा इंकशाफ उन्होंने किया है। लेकिन उसपे ये सवाल भी है फिर को $5 लाख किसने दिए थे? जो उनसे पूछा गया, उनका कहना था कि उन्होंने ये जो देते रहते हैं। तो ये मैं समझता हूँ और ये थी हमारी आज की गुफ्तगू जिसमें हमने डिस्कस किया अली वज़ीर को भी जो शिया उलमा की आर्मी चीफ से पाकिस्तान के आर्मी मुलाकात चीफ को से मुलाकात को भी और अब आखिर में हमने मुफ्ती अब्दुल रहीम को, तो यहाँ तक जो हमारी समझ है हम उसके मुताबिक हम कोई ऐसे तज्ज़ियाकार नहीं हैं। हम जो अपनी समझ में आती है चीज़ें उसके मुताबिक बात करते हैं। तो आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि कहाँ आपको कौन-सी बात से कौन-सा पहलू जो है तशना महसूस हुआ है। तो हम आपकी राय के मुंतज़िर रहेंगे।